डिस्कस करना है फ्लैट स्पेस। व्हाट इज द फ्लैट स्पेस? अच्छा, फ्लैट स्पेस क्या है? Flat space means there is no gravity. Einstein proposed that if there is a gravity, then there will be the curvature in space-time. Okay. If there is a no gravity, this sheet of space-time, that will be a flat. Okay. So कहाँ तक आ रहे हैं? यहाँ? Yes, sir. Okay. So actually from childhood, अच्छा, mostly theoretical physics was the unreligious. They may be religious, but they don't believe, including me, they don't believe कि science and religious must be mixed. I also believe that I am a very religious person. I offer my all prayers, rozas and fastings and etc. But I believe we should not mix the ideas of the science and religious with each other, because it always creates. Because science is a revolutionary subject that change with passage of time, and religious is based on the beliefs. And whenever we try, unfortunately we have a mind, and our mind always suggests, if we are attached with, emotionally attached with someone, so then it always create a matching effect between two things, even wo match ke saath. So that's why I always believe that physics is my first love. And religious is also my first love. Both are my first, but both have a separate cognate. They have a separate room. Religious is my beliefs, and science is my love. Physics is my love. So I should never try to mix it. जब भी आपके इमोशन होंगे तो इनको आप गलत तौर पे मिक्स करोगे. But it was not happened in the case of the Einstein. आइंस्टाइन बचपन से ये बिलीव करता था कि मज़हब ही सब कुछ है, खुदा ही सब कुछ है. He always imposed all the theories according to his religion. इसने कहा, आइंस्टाइन ने से जब को कहा गया, तो आइंस्टाइन ने कहा कि according to Galilean transformation, ये आया कहाँ से? According to Einstein, the Galilean transformation. According to Galilean transformation, if two person is traveling on the car, the same, if one person is traveling in the car and that is closed from all sides, if you have a car, okay, and you are moving forward with constant speed v, speed is constant, okay, and it is closed. If the box is closed, okay, and if the acceleration is 0, if box is closed and acceleration is 0, any person sitting inside this closed parts will never judge it is moving or at the rest. हम कभी भी ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये मूव कर रहा है. Is it moving or not? Okay. So we never guess about it is stationary state or a moving frame. Okay. अच्छा, this is the Galilean transformation. आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट सोचा. उसने कहा, if I throw a light and it will come back. Okay. If this box is moving, you know that dipolar effect will be appear. Okay, and the speed of light will be changed. Okay, because if that is moving away source, and then you may calculate the box is moving or not moving. जैसे अभी आप इस अर्थ पे बैठे हो,
तो आपको पता नहीं चला कि अर्थ मूव कर रही है क्या। तो आइंस्टाइन ने कहा बट आई डोंट बिलीव ऑन दैट कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट, अच्छा उसने ये एक्सपेरिमेंट, उसका कहना ये था, थॉट एक्सपेरिमेंट था कि अगर लाइट इस तरह वापस आ जाती है तो लाइट इज टेलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट बॉक्स इज मूविंग और नॉट। ही सेज अल्लाह डोंट, गॉड डोंट डू सच थिंग्स कि एट सम फ्रेम्स है ना, इट इज पॉसिबल कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, हम एक और मेथड अप्लाई करें तो हम पता चल सके कि बॉक्स मूव कर रहा है। So he says that the speed of light जो है this if light is changing with the observer, मतलब आपको पता है कोई चीज़ ऑब्जर्वर के साथ मूव करती है तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, परपेंडिकुलर हो रही है तो वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट के हिसाब से, और अपोजिट मूव कर रही है तो ऐड होगी। ये आप सारी बातें पता है, ठीक है, वो मैं ड्रा भी करता हूँ बताऊँ। बट इफ इट इज हैपन इन द केस ऑफ द लाइट इट कैन इजीली ऑब्जर्व। तो आइंस्टाइन ने इस नजरिए को रिजेक्ट कर दिया। तो क्योंकि लाइट जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा ठीक है, लेजर लाइट हमने फेंकी। अच्छा, दूसरा उसका कहना ये था, ये बड़ा उसका पॉपुलर जुमला रहा कि अच्छा आइंस्टाइन का जो मैथमेटिक्स है, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड मेनी टाइम्स, आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स में ये मसला था कि वो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ वो टोटली अगेंस्ट है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आइंस्टाइन जो आपके पास स्पेस टाइम है दैट इज अभी हम करेंगे, दे हैव the 4 quantum, 3 real and 1 imaginary, 1 time. If you take if you make a Hermitian operator of this will become a skew Hermitian. If this is a Hermitian, ये जरूरी नहीं है आप किसी एक को भी बना सकते हैं इसको, अगर आप if this is a Hermitian, this will be a skew Hermitian. And if it is Hermitian, in the this is Hermitian, आप ऑपरेटर बनाने का जो मेथड है उनको अप्लाई करें। इफ यू ट्राई टू मेक अ हर्मिशन इट विल बिकम अ स्क्यू हर्मिशन। सो relativity is told, एक तो ये बात है कि relativity is totally against mathematically, if you believe on relativity then you are against, you are anti quantum mechanics, and if you believe on the quantum mechanics it means you are against the relativity, and if you believe the relativity then you are against the quantum। ये नेचुरल सी बात है क्योंकि दोनों ये मैथमेटिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के टोटली अपोजिट है। ऑल फिजिकल ऑब्जर्वेबल मस्ट बी अ हर्मिशियन ऑपरेटर इन अ क्वांटम, ओके, बट दीज आर नॉट अ हर्मिशियन, ओके, if one is Hermitian then other will be a skew Hermitian. So that's why there is no existence of the relativistic quantum mechanics but quantum field theories. So quantum field theories में operators बनते हैं, so that's why quantum field theory. That's why एक तो ये रीजन भी हो सकती है आइंस्टाइन की, क्योंकि आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स, क्योंकि आइंस्टाइन अगर क्वांटम मैकेनिक्स पे बिलीव कर रहा था तो उसको अपनी थ्योरी से वापस आना पड़ता, उसको मानना पड़ता कि ही इज अनॉन एंड, लेकिन उसने इस चीज की प्ली नहीं कि मेरा मैथमेटिक्स का, उसने प्ली किस चीज की ली, उसने कहा गॉड डोंट प्ले ऑन द डाइस। ये कैसे हो सकता है कि हमारी सोचने की प्रोबेबिलिटी हो, हमारी सोचने की लिमिट हो। ही इज अगेंस्ट ऑफ दिस आइडियोलॉजी थॉट्स। अभी भी बहुत से साइंटिस्ट दुनिया में हैं जो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे डोंट बिलीव ऑन क्वांटम, बिकॉज़ इन क्वांटम मैकेनिक्स नथिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, only probabilities can be measured, only the eigen's values may be measured, okay, can be measured, corresponding the Hermitian operator defined relative to the classical observer, okay. तो मजहब की बेस पे उसका मतलब ये है, लेकिन मैं इस एंगल पे नहीं देख, लेकिन थोड़ा सा बहुत आपके पास इंफॉर्मेशन, बट बिकॉज आई डोंट बिलीव ऑन दैट आप जो है रिलीजियस को, मेरा ख्याल है कि मैं आइंस्टाइन की थ्योरी से तो एग्री करता हूँ बट आई डोंट द मेथड टू रिवॉल्व इट, आई डोंट बिलीव ऑन दैट कि आप उसको मजहब से रिलेट करके, क्योंकि मेरा ख्याल है मजहब गलत नहीं हो सकता कभी, लेकिन मजहब को जब जो चीज़ें इमोशन से अटैच की जाती हैं, इमोशनली अटैच की जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है, बट दैट इज द डिफरेंट डिस्कशन। हम उस हमारा मेन टॉपिक वो नहीं, तो इस बिलीव की वजह से, अच्छा ये बिलीव भी था और ऊपर से एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया, जैसे माइकलसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपने DS से पढ़ा होगा, ठीक है,
ये आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा जो है ना एक ही थिकनेस के लिए थोड़ी सी ड्राइंग में मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बट दे हैव इक्वल थिकनेस, ठीक है। ये जो लाइट यहां से गई, ठीक है, ये लाइट जा रही है, ठीक है, यहां से गई, यहां आई, यहां से अपवर्ड गई, यहां एक मिरर लगा हुआ, ठीक है, और यहां भी यहां एक ऑब्जर्वर आई है, ठीक है, यार यहाँ इतना आई है। अच्छा, मैं ना ड्राइविंग में बहुत पॉपुलर था किसी जमाने में, अब मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं थी, एनीवे क्यों काफ़ी अच्छे से की नहीं, तो ठीक है, ये वहाँ गया और फिर यहाँ से टकराने के बाद वापस आ गया नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैंने मेरा गलत नहीं है, जाहिर है थोड़ा सा हो जाता है, ये मेरा ख्याल है इस तरह शायद इस तरह, ये यहाँ ऐसे लाइट ऐसे गई है, वन टाइम थिकनेस टी, वन टी, टी वापस आया, यानी 3t से ये सॉरी टी छोड़ो, डी 1d 2d, और यानी टोटल इसने 3 टाइम इस डी से क्रॉस किया, ठीक है। क्या इधर से आगे आगे की तरफ कुछ लाइट जो आगे की वो तरफ तो गई है, लेकिन मैं इसका देख रहा हूँ जैसा ऐसे ही है, तो 3 टाइम इसमें से पास किया ना जो आगे, नहीं इधर से तो फिर 2 टाइम नहीं सर, एक दफा उस एक, अच्छा हाँ ठीक एक दफा है, ये 3t, ये देखो ये 3d इसने डिस्टेंस, ठीक है, हाँ जैसे जो आ रहा है, ठीक है, 1d 2d, फिर वापस आई 3d, यानी 3 डिस्प्लेसमेंट इसमें, 3 टाइम इसने मिरर से गुजरा, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी थिकनेस, इसकी भी d है थिकनेस, इसकी भी थिकनेस क्या है, d है, एक ही थिकनेस है, तो यहां से भी लाइट जो लाइट गई वन टाइम एक दफा, और d and d, so after reflecting it will be also a 3, so एक ही जैसे थिकनेस से 3 दफा लाइट, ठीक है, और ये जो है ये भी मिरर है, ठीक है, यहाँ से आप मिरर, ठीक है, बाकी लोग मिरर, ओके। साइड भी सर है, और इसमें भी तो आता है ना, इस साइड भी सर पे देखो जी, इस दूसरी साइड भी एक हाँ हाँ वो मिरर फिक्स मिरर जो है डेफिनेटली, ठीक है। तो एक ही थिकनेस से अगर डिस्प्लेसमेंट एक रखा गया है तो इंटरफेरेंस का मन नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही तरह का कंस्ट्रक्टर, फेज डिफरेंस मस्ट बी अवेलेबल, ओके, क्योंकि थिकनेस से एक ऐसा कुछ एक है, एंड देन इसको उसने एक तो सारा दिन उसने 100 मोर देन 100 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, दिन को सूरज और तरफ से निकलता है, रात को और तरफ से, ठीक है, फिर उसने इसको रोटेट किया, सोर्स को डिफरेंट सोर्सेज को रख कर, लेकिन ऐसे चेंज करने से इसकी जो आपके रिंग्स बनने थे वो चेंज होने लगे, ठीक है, जब उसको रोटेट करते हैं जो कुछ, बट दैट आर नॉट चेंज, द फेज डिफरेंस वाज नॉट क्रिएटेड, एक्चुअली होना चाहिए था, क्योंकि अगर वेलोसिटी के डिफरेंस से होता है तो आपको पता है बी ए बी, अगर बहुत सारा मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, दिस मीन्स दैट इज द बी बी माइनस बी ए, वही नॉट, ओके, इफ B, B, so the velocity, A will observe, if this is the velocity of A observer and this is the velocity of B observer, then the velocity of B with respect to A, yani A will measure the velocity of B
b minus b, that will be subtract. You know that खाली according to Gillian transformation. इसके लिए ज़्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं, ऐसे ही है. If they are moving opposite, then you know that will be a b plus minus, ये नेगेटिव हो जाएगा b माइनस माइनस माइनस, ओके है वही चीज, आप सब्ट्रैक्ट करें, ये नेगेटिव हो गया इसके दर्शन, ठीक है. इफ ऑर्थोगोनल देन दिस इज VA and this is VB. One case, two case. So if we change the direction of the source, if this light is shining toward the source, then they must be so this light must be follow this formula. But according to Michelson experiment, there was no change. There were no phases. इस वजह से यहाँ क्या आनी चाहिए थी? There must be the phase change in the speed of observation of the speed of light. Okay, तो speed of light की को इस इंटरफेरोमीटर को रोटेट करने से इसमें इस तरह की चेंजिंग दर्शानी चाहिए. But all these change were not observed during the Michelson experiment. ठीक है. सर उसने ईथर के लिए जो अज्यूम नहीं किया था, नहीं मतलब अगर स्पीड, अगर आप ईथर को भूल गए, अगर मीडियम में ट्रैवल करती है तो ईथर को कंसीडर किया, मतलब उसने ये कहा कि लाइट जो ऑब्जर्वेबल्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं है. अगर लाइट ऑब्जर्वेबल की स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब दैट इज नॉट चेंज. तो कहने का मतलब है कि एक्चुअली क्या होता है, ये मैं साफ कर दूं. अच्छा ये आप मैं क्योंकि बिल्कुल BS का टॉपिक है, तो फॉर रेफरेंस फंडामेंटल यूनिवर्सिटी फिजिक्स बाय ठीक है, दैट इज द गुड वेरी गुड राइटर फॉर अंडरग्रेजुएट. आप लोगों ने वो पढ़ी होंगी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, मैं पता नहीं मैं वो बुक साथ पढ़ Halliday Rising. आई थिंक वो डेटा इज नॉट अ फॉर द फिजिक्स, वो फिजिक्स वालों के लिए है ही, दैट्स बुक्स आर फॉर द इंजीनियर. इसी वजह से उसका मैथमेटिक्स है, वो किसी भी लिहाज से फिजिक्स को. दिस एक्सपेरिमेंट इज well explained in the Fundamental University Physics Volume 1, जो इनका एक कट्ठा वॉल्यूम आता है. Volume 1 is based on for mechanics, Volume 2 is I think the some volumes are based on mechanics, and the third is electricity and dynamics. उनके 4-5 वॉल्यूम हैं, 5 वॉल्यूम हैं, and chapter I think 6 बनता है. तो मुझे चैप्टर याद नहीं इसलिए मैं यहाँ रेफरेंस कर. तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया हुआ, उसको मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छे तरीके से आप अपने असाइनमेंट के तौर पे आप ठीक है, तो आपने ये असाइनमेंट के तौर पे कर दिया, मैं ये इसको छोड़ना है ताकि आपको समझने में, तो असाइनमेंट ठीक है. एंड दैट सम असाइनमेंट उसमें है क्या आपने करना है. On that book, it is proved that the actually, according to ये तो मैंने आपको बता दिया कि if there is a no phase difference, then it means actually क्या है, if you हमने किया पढ़ा क्या है कि if होता क्या है
observers. Okay. One is rotating too. Okay. And इसको दोनों में भाग okay. The observation will be based okay, but in this two reference thing, this is O frame and this is O prime frame. ठीक है, the velocity must be, हमने देखा कि actually vector must be change अगर rotate हो रहा है और transform, but अच्छा ये इसका इसकी तलब नहीं है, ये मतलब ये दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक पास एक रेस्ट पे है और एक उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो आपने देखा कि वेलोसिटी विल बी चेंज, ठीक है। मैं इसको बल्कि इस चीज को आप ये रखो गलत राइट, बस ठीक है, एक रेस्ट पे और एक मूविंग, ये रेस्ट है वो नॉट इज रेस्ट फ्रेम, और ये मूविंग, तो सो वेलोसिटी शुड बी there must be a phase difference for observer और rest frame के लिए velocity must be different and for moving frame the velocity must be different, but observation says but Michelson interferometer experiment revealed that must be the same speed of light, that speed of light must be same, and you will get x square y square plus z square minus ct square is constant. जीरो फर्स्ट, अच्छा उसमें जो माइकलसन जो आपने जो ये मैं बुक बता रहा हूँ उसमें जीरो प्रूफ किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीरो। सर ये असाइनमेंट का पार्ट है ये जो, हाँ जी, यू विल प्रूव है, ठीक है, यानी दोनों फ्रेम्स के लिए मूविंग फ्रेम के लिए एज वेल एज C is different, okay, but C is same. C is same, okay. This formula, ये आपने असाइनमेंट से, ये उसमें प्रूव होया हुआ है, इस वजह से इतना बड़ा मसला है, ठीक है। तो आइंस्टाइन हैज प्रूव, माइकलसन हैज प्रूव, मतलब कुछ नहीं पता नहीं है मुझे, आइंस्टाइन ये मुझे अब याद नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू Michelson interferometer there is no phase difference, so speed of light is constant for all observer. अगर speed of light is constant for moving observer and rest observer is the same, then this formula will be, you will get this formula for this, okay. और ये इस तरह की फिगर बनी होगी, आप वहाँ से इस तरह से अच्छा इसको सी जीरो मीन, इसको जरा ज्यादा जनरली देखा गया, तो जीरो इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से देखा गया बाद में आपके वो जो उसमें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें ये जीरो ही प्रूव किया गया, तो दिस वाज x square plus y square plus z square minus c of t square is constant. Okay? Yes. अच्छा दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, जैसे हमने पहले किया हुआ, सिर्फ फर्क क्या आया, ये वही चीज है जो फार्मूला हमने पहले टेंसर में, लेकिन वहां आपके पास 3 कोऑर्डिनेट थे, t वाज नॉट एज अ डायमेंशन। अच्छा ये t ऐसे डायमेंशन भी नहीं है, बहुत से लोग समझते हैं, मॉडल वाले इसी वजह से कुछ गलती करते हैं, वो समझते हैं दिस इज द फोर्थ डायमेंशन, दिस इज द फोर्थ डायमेंशन, बट दिस द फोर्थ डायमेंशन इज डिफरेंट देन दिस 3 डायमेंशन।
ये ग्रुप थ्योरी आगे आप पढ़ोगे इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी में अगर आपको, मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप मेरे से बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं। यू मस्ट बी चूज दी थ्योरेटिकल फिजिक्स एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर वो मेरे से पढ़ते हो या कोई भी पढ़ाता है, कोई और पढ़ाता है तो आई डोंट नो, बट मेरे से पढ़ते हो तो देन आई विल प्रूव दैट दीज आर द डिस्कनेक्टिंग स्पेस, दीज आर नॉट कनेक्टिंग स्पेस। That is the element of fourth dimension, but it is not making a connecting. These are the disconnected space. They are making a disconnected. Not simple. असल में बहुत सी बुक्स यूज करते हैं not simple connected, not लिखने, ठीक है। Actually, this R3, ICT is not simple connected space. So in when you will study this topology and group theory, then I will prove it. अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको प्रूव कर देना चाहें, तो बस आपके समझने के लिए, वैसे तो थोड़ा बहुत नजर भी आ रहा है, दिस इज द डिफरेंट टाइप, यहाँ सिग्नेचर टोटली चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये आपको सही इन्फॉर्मेशन तो नहीं देते मुकम्मल, बट इसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी एंड ग्रुप थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप डी ग्रुप थ्योरी में से पढ़ते हो, एडवांस ग्रुप थ्योरी, तो देन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, ओके। तो अच्छा, हमने वहां क्या पढ़ा था? लेंथ मस्ट बी whenever you transform the vector, हमने क्या पढ़ा था इकरा? Whenever you transform the vector, टेंसर ही है ना, वही वेक्टर। Whenever we transform the vectors remain the same direction changes, but components will be transformed. This is complete vector actually. Yeah, this we say that this is the L, and this is L. Vector L is a vector, and their magnitude will remain the same. Component will be transformed in such a way the length, ये L is length, this length will remain same. Okay, ये concept वही है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, if you understand this simple physics, तो कर्व स्पेस टाइम को समझना भी आसान हो जाता है, ठीक है। That is the also that there will be a general tensor जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, and this will be the special tensor जो है flat space tensor, ठीक है। It is a little bit simple, but that is a very complicated, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हो तो हम जो है आगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो होपफुली मेरे बहुत से स्टूडेंट जो है दे विल बी रेडी टू जो है रिसर्च, मेरा ख्याल है कि वो उस पर काम करेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहीं तक, ठीक है, ये आपके साथ, ओके। ये नहीं है साइन, वो सिंपल कनेक्टेड आपका काम ही नहीं है, वो आपको नहीं समझ आएगी, वो तो अभी आपके पास की बात है। अंडर ग्रेजुएट लेवल में ये, ओके, दिस इज लेंथ एंड दिस इज नाउ दिस बिकम अ const, okay, and this is L square. L square is a vector plane. You may say that is, मैंने कहा कहते हैं ओरिजिनल वेक्टर bra is covering vector, okay, bra will be covered, so you may say that this will be conforming. Bra will be when we take the transpose mean, अगर मैं इसे लिखूं कि ये ट्रांसपोज है एंड दिस इज टेकिंग द ट्रांसपोज, ये कोवेलेंट इज नॉट सिंपल द ब्रा, एक्चुअली इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोवेलेंट, ब्रा इज ट्रांसपोज ऑफ द कोवेलेंट, नॉट हाँ यस ट्रांसपोज, ठीक है। एंड दिस will be this and this will be, okay, these are the two vectors, okay, and you may say that sir transpose से कोई भी कंट्रा वेरिएंट में चेंज नहीं होता, नहीं, मैं आपको बताऊं,
दोबारा आप अगर दोबारा पिछला देखोगे, ठीक है, दिस इज वेक्टर complex conjugate of this, that will be, if this is I have already explained, if this is the conjugate, all vectors, all original vectors are conjugate, okay, इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो दे विल बी अ कंजugate, ठीक है। कोवेरिएंट क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, complex conjugate, okay, and Ra is the Hermitian conjugate, meaning this is the complex conjugate, this is the transpose of the covariant। एक्चुअली क्या है आपके पास x square y square plus z square, okay? x y z, okay, दिस इज कोवेरिएंट, ठीक है, ओके, जैसे मैंने पहले बताया, दिस इज कोवेरिएंट, दिस इज कंजugate, ओके। ओके, अच्छा वैसे एयोटा लेते ही हैं उसमें, क्योंकि हम वो खुद मैं बाद में बताता हूँ, अभी ये मैं यूक्लिडियन स्पेस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, मतलब इसमीन x अल्फा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, y अल्फा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, z अल्फा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एयोटा ct अल्फा का, एंड हियर विल बी x अल्फा y अल्फा, अच्छा इसके ऊपर ट्रांसपोज x y, मैं गलत लिख रहा हूँ सर इधर कंजुगेट का ट्रांसपोज नहीं खैर नहीं, वो ठीक है। आप असल में आपने इंडिसेस डाल दिए ना, x y z डाल दिए, वो आपने अल्फा, ये क्या है, मैंने क्या कहा था, दिस इज एक्चुअली दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और ये क्या आपके पास खुद से, और इसके साथ क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और क्या है, ठीक है, ऐसे आप ठीक। अच्छा आप एल की वैल्यू डालें, एल की पहली वैल्यू क्या है, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी एयोटा सी, एंड दिस विल बी एक्स वाई जी एयोटा सी, और इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, दिस विल बी x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, y का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, z का लें, तो ये माइनस एयोटा सी ट्रांसपोज x y z, ओके, एंड दिस विल बी x स्क्वायर, मुझे लिखने की जरूरत है या नहीं ऐसे, चलो लिख, मुझे पता है हो सकता है कहीं को, क्योंकि पिछला लेक्चर भूला हूँ, ट्रांसपोज किया तो ये आ गया आपके पास, तो दिस विल गिव यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर क्या होता है, प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर c d का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस नहीं है, आयोटा स्क्वायर सर वो माइनस, है ठीक, इसमें मसला पता क्या आ रहा है, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ये हमारा यूक्लिडियन स्पेस में लग रहा है, ठीक है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं देंगे, जैसे जब हम रियल नंबर के तौर पे एक ही स्पेस पे, ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वही रिजल्ट है जो आपके पास, ठीक है, एंड दैट विल बी, क्योंकि एल स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो दिस विल बी ये
ओके, क्लियर हो गया? यस सर। असल में आपको याद होगा अपने ट्रांसपोज ही लेते हैं सर, आप कंप्लेक्स करना, लेकिन अगर इसे आप कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखते हैं, कंट्रावेरिएंट का मतलब है उसको, अगर आप इसको फोर्थ आई को रिमूव कर देते हैं, सी टी को फोर्थ एलिमेंट लेते हैं, तो वो खुद कंप्लेक्स ही होती है। बट अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी टी कंप्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, एयोटा लिखते ही नहीं, मेंशन नहीं करते, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी, सर खाली से और ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई जेड सी टी, कोवेरिएंट के साथ माइनस, कंट्रावेरिएंट के साथ यहाँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सेम रिजल्ट, the length will remain on. So why there is a time dilation, and अगर आपसे कोई पूछता है why there is a time dilation, अगर वेक्टर चेंज नहीं होता, तो why Einstein has proved that there is a time dilation and length contraction, तो आप क्या जवाब दोगे इसका, क्या होगा जी? मैं कहा कि I have stated that length always remain the सेम कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, ठीक है, किसी भी डायमेंशन, चाहे आप यूक्लिडियन में जाए, इस तरीके से करने को कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस, इस तरीके को कहते हैं मिन्कॉव्स्की स्पेस, ठीक है। तो हमारी कंडीशन थी कि लेंथ मस्ट बी ऑलवेज सेम, मस्ट बी सेम, तो देन व्हाट इज द लेंथ कंट्रैक्शन, लेंथ कंट्रैक्शन, तो लेंथ को कम करना या टाइम डिलेशन, ये हम क्यों करते हैं, कौन जवाब देगा इसका? सर डिफरेंट स्पेस नहीं, लेंथ ऑलवेज must be remain the same. Actually Einstein स्पेस जो लेंथ कंट्रैक्शन है स्पेस, ये उसका टोटल लेंथ का एक कंपोनेंट है, ये स्पेस कंपोनेंट और ये कंपोनेंट चेंज हुए, टोटल वेक्टर जो है एल जो है वो क्या रहता है, सेम है। फिर दोबारा समझ लो, लेंथ कंट्रैक्शन इज नॉट चेंज ऑफ द लेंथ, that in four dimension that is the component of the space component of the four vector, and time is also another component, they will be changed in such a way that total length will be remain the same. समझ आ गई? अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि if length remain the same, why in relativity there is a length contraction or time dilation, you will be answered that actually total length in four dimension total length remain the constant, but space, three dimensional space या R3 treated as the components, okay, and time is okay. तो वो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स का मूवमेंट तो आपने रेज कर दिया था। This is a four dimension, ठीक है, एक पार्ट ये, एक पार्ट, this is also component of four dimensional vector. This is space component, and part of element of RQ, and this is time. So length contraction is actually the contraction of space. change in space component as the equivalent of 4D, and length dilation is time component of, Time dilation. but total length healthcare in 4D will
remain in between. Yes, you may say that. And the time, Total length will be remain in. ठीक है? the time direction. Third line. बोर्ड टाइम नहीं रहा था. ओके. So, and if I write in this form x, y, z, sorry, you have okay, and I made a yeah. अच्छा, बाद में आने वालों ने इसको ऐसे लिखा, यानी ये इक्वल तो नहीं चेंज कर सकते, अगर ले तो वो भी कांस्टेंट होगा. I may write in this way. Yes. सिर्फ ऑर्डर चेंज कर. एक्स कहाँ वो एक्स वाली टर्म को पहले ले लिखो और इसके ऊपर सच ट्रांसपोज दी. ठीक है, मैंने वो जो एक्स के ये जो चीज है ये पहले लिखी सर ऐसे. ठीक है, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ, वैसे तो मैं बैटरी 3-4 दफा बोल सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. सो इसका नाम एक्स नॉट रखा गया, एक्स नॉट. ठीक है, इसको x1, इसको x2, इसको x3. ठीक है, ये कोवेलेंट है x0, x1, x2. इसके ऊपर है. ठीक है, तो x0 जो हो गया वो आपके पास -8 है. कंट्रावेलेंट हो गया आपके पास CT. x1 आपके पास x1 कंट्रावेलेंट भी है, x2 कोवेलेंट भी आपके पास y, and x2 is y, x3 is z, x3 is okay. So alpha these are two vectors. This will be x square, length of this, and this will be ये वैसे स्केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड है वैसे. ठीक है, नाम भी लिखे तो उसका मतलब कीजिए. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x0 या x0 कंट्रावेलेंट
और x नॉट को विद सिग्नेचर क्या है इसके, पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर प्लस, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, दैट्स व्हाई मैं, क्योंकि इनके सिग्नेचर एक जैसे होते हैं तो मैं ऐसे नहीं टाइम यूज करूंगा, ठीक है। हमारे पास पेपर करने में इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। व्हाई आई विल राइट एवरी कंपोनेंट, अमूमन हम इसे 4 डिमेंशन को कन्वर्ट कर देते हैं 2 डिमेंशन। This is x alpha, X contravariant. Contravariant I usually write in this way. X, okay, x naught, ठीक है। x naught क्या है आपके पास, C minus x naught, okay, and xi vector, okay। X naught तो कम x naught, कोवेरिएंट का x naught, यानी इसमें वो सारी बातें आ गई, x1 1 2 3, and here will be X contravariant. x contravariant and xi, okay, and ऊपर now, and x naught will be minus ct, and this will be x in 1 2 3, ठीक है। And this here there will be transpose, and this will be ct, and this will be x, okay, clear हो गया। x से मुराद x y z, x is part of R3 and ct part of C complex, या ऐसे टाइम, ठीक है। एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ C4, ठीक है, 4 dimensions, ठीक है, ओके। आपके पास ही यहां तक तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये वही टेंसर उसी तरीके से सारा कुछ जो पहले हमने डिस्कस किया, लेकिन बस इसमें एक सिग्नेचर। अच्छा, एक बात और करने वाली है, हम थोड़ा सा मतलब जो मोस्टली बुक्स करती हैं, मोस्टली बुक्स में क्या है कि हमने यहाँ सिग्नेचर किया है, इफ x square is x square, चलो इसको भी कहते हैं, इफ x square plus y square plus z square माइनस, हमने क्या लिखा था, माइनस c square t square plus x square plus y square plus z square is constant, ये constant था हमारे पास। Yes. If we multiply both sides with minus, if वही मल्टीप्लाई के लिए ये भी साइन करते हैं, इफ वी यूज करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -1, ठीक है, then it will become c square t square minus x square minus y square minus z square, it become minus constant, and when we multiply constant with minus constant, this will be a new constant, that is will be not constant but that will be a new constant, yani this will be also remain the constant, okay, and then signature will be changed, this signature will be plus minus minus minus, okay, so
So now with this was with the signature minus plus 2, but with the signature plus minus we have बस x नॉट x i, मैंने उसे ट्रांसपोज दिया x नॉट and x, okay, and you will have ct minus x सर अब इसे दूसरी तरह ट्रांसपोज, okay. So you have this. ठीक है, कोई मसला नहीं है, ओके। सर इन्हें मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। वो तो आ जाएगा ना, उसके वही चीज़ आ, वो तो ये आ जाएगा ना। एक्चुअली हम जानना चाहते थे कोवेलेंट के सिग्नेचर क्या है, कोवेलेंट के एलिमेंट क्या है और कट कर वो ये जो पहले पढ़ लिया, ठीक है, क्या एक्स हम एक्स अल्फा से एक्स अल्फा हम कोवेलेंट से कंट्रोल, ये सॉरी बीटा लिखा था मैंने, ए लिखते हो बीटा लिखते हो, ए लिखा था, ए जो आपने लिखा वो लिखा। और हाउ इट विल मूव, कैसे जाएगा, ए दिस विल बी, हमने ये यूज किया था ए अल्फा, तो ए जो है इधर ए अल्फा, ये हमने, ठीक है, ओके, ये यूज किया इन फ्लैट स्पेस, इन फ्लैट स्पेस, व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैट स्पेस, क्योंकि हर एक्स पे टी जो है वो क्या है आपके ऊपर ऑर्थोगोनल है। ये आपने वैसे पिछले मैंने लेक्चर आपके साथ आपने भी देखा हो तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि एक्स के प्लस आई टी आपके पास क्या है, एक्स रियल का है और टी जो है वो किसका है, मेजर, और इनके दरमियान एंगल क्या है, 9, ठीक है, और सो रियल एंगल, सो एट एवरी पॉइंट दिस इज लाइक एक्स, every point the t is orthogonal, so that's why ये हमारे पास एक फ्लैट स्पेस पर है, स्पेस पर इस तरह सब x और t बिल्कुल इक्वली कहीं चेंज नहीं आता, बट इफ देयर इज अ मास, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मतलब इसको अच्छी तरीके से, तो मेरे रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी पे एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू, मतलब वैसे आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मतलब फॉर जनरल नॉलेज एंड फॉर इंटरेस्ट
you can march, ठीक है, but it is not necessary वो course करते हैं. If there is a curvature B, then these lines will be mixed and there will be a, so that will be not anyway in a flat space this will be represented by A alpha G7. वैसे बात उसको उसी ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सर वो तो ईटा नीचे है क्या वो ऊपर तो ईटा है ना, तो नीचे ये क्या है एक्स अल्फा जी ईटा को जी से मतलब फ्लैट स्पेस में ज़्यादा उसकी नोटेशन में आता है, लेकिन बाद में उससे ईटा ही यूज करती हैं, आपको आपकी मर्जी है, लेकिन जी भी यूज कर लो, मैं मून डिफरेंशिएट करने के लिए जी यूज करता हूँ. जी बट इन जी ए अल्फा है सर, ए अल्फा इधर ये होगा, इधर ये और इधर है, मैंने सिर्फ इन ईटा को रिप्लेस किया, ठीक है. So x a is g x alpha a okay, and this is ऐसे there is alpha, there is a summation on alpha, summation है ना, here is alpha is dummy. So पहले से आसान इसमें इसका क्या मतलब है कि x a जो है वो किसके बराबर है, g a 0 x 0 समझिए, ठीक है, प्लस g 0 1 x नहीं a तो यहाँ a है, a फिक्स है, समेशन अल्फा पे a is the free base, so there will be no change in a. The summation will be on alpha because alpha. Please आपने आपस में बात ना करो, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, और अगर आपको लग रहा है साथ वाला ज्यादा अच्छा आपको समझा रहा है तो मैं पास कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है. तो इन दो बातों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. क्लास में इस तरह अलग छोटी छोटी क्लासें होना शुरू हो जाएंगी तो फिर समझाना बाकियों को भी समझ आ जाएगी. अगर आप ये समझ रहे हो, आप ज्यादा अच्छा समझा रहे हो तो आप बेशक की तरह, ठीक है. समेशन क्योंकि अल्फा इज डमी वेरिएबल, a is a free variable, the summation will be on a dummy. So ओके, आपकी वैल्यू ये थी ना, अल्फा क्या था आपके पास 0 1 2 3 और a क्या था 0 1 2 3. या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, g a 0 मैं ज्यादा इस तरह लिखता हूं जैसा होता है, g 0 I 1 2 3 है क्योंकि वो ठीक है, और हम इसे इसी तरह से लिख सकते हैं, और ये आपके पास x है, ठीक है. ये जी 0 आई आएगा, जी ए आएगा ना, 0 हाँ सॉरी ए, ओके, ठीक है, ओके. x a जो है आपके पास क्या है, a 0
सी टी प्लस है यस प्लस जी ए आई 0i, ये क्या आपके पास सर ए आई सर ये है ये ऊपर ए आई, और ये एक्स है सिर्फ एक्स बार ये x, ठीक है। ये ओके, और a की कौन कौन सी, a की 2 वैल्यू है, अगर हम दो यानी a अगर आपके पास 0 है तो g आपके पास, अगर x a 0 है तो ये 0 0 सी t प्लस जी जीरो आई जीरो आ जाएगा सारी तरफ जीरो आ जाएगा किधर, एक जगह जीरो हाँ 0 एक जगह 0, ठीक है। और जब 1 होगा और x i किसके बराबर आ जाएगा, ये भी जे g आई जीरो i 0 सी c t प्लस जीरो आई i आई लेकिन ये i i एक्स x, and this x0 is also c t and this i t एक्स ऐसे ही, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, मैट्रिक्स सी टी इज इक्वल टू G00 CT प्लस G0I X, ऐसे if two are independent, G00 के it's mean 0 CT plus 1 CT 0 X, ठीक है। जी जीरो कैसे मैं बताऊं, जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तभी इक्वल होगा। ये सी टी के बराबर तभी होगा जब ये क्या होगा 1 होगा और ये 0। ये जीरो ओके, और एक्स इज इक्वल टू इसका x इक्वल टू जी आई जीरो सी टी जी आई जीरो x हमने, हाँ ये हमारे पास जीरो हो जाएगा एक सेकंड, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, पहले लिखा हुआ। अच्छा, फर्स्ट टर्म जीरो होगी सेकंड वाली 1 फर्स्ट टर्म 0, जीरो सेकंड 1 एक्स सेकंड टर्म क्या है 1 into x 1 इंटू, ठीक है। ये आ गया, प्लीज सर वो सी टी तरीका कैसे है, वो एक्स जीरो की जगह सी टी कैसे है? नहीं, सीटी तो ऐसे ही है ना, ये तो पता है। इससे ऊपर स्टेप यहाँ x0 की वैल्यू क्या थी, सी टी वो पीछे लिखी हुई, ठीक और नहीं, इन दोनों को कंपेयर कर, एक्चुअली इसी को क्वेश्चन को ये उसी तरह लिखा है तो इसकी वैल्यू की कब इक्वल होगी तब, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म, या इसको ऐसे लिख लो, इसको भी उसी फॉर्म, ये क्या है आपके फॉर्म 0 सॉरी 1 CT जीरो एक्स प्लस 0 ओके, या एक गलती, XI कोवेलेंट का क्या था, सिग्नेचर कैसे प्लस माइनस,
ऐसे सीटी के साथ माइनस सर इधर माइनस नीचे वाली सीटी के तरफ साथ यहाँ से ये था सर इधर भी माइनस जी सर इधर भी माइनस है जी माइनस है, इधर भी माइनस ठीक है। वो तो जीरो को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस उससे फर्क नहीं है, ये आपके पास, ठीक है। ये क्या था आपके पास, अब ये क्या है आपके पास, ये क्या था जी ए जीरो, ये था जी जीरो जीरो, ये क्या था जीरो आई, ये क्या था जी आई जीरो जी आई जीरो, जी आई जी आई आई, ओके। सो आपके पास जो जी मैट्रिक्स है इनको हम करेंगे, ये किसके बराबर आ गया, जी क्या था आपके पास, सर जी ए अल्फा ए अल्फा, ये किसके बराबर आ गया, जी जीरो जीरो जी जीरो जीरो, जी जीरो जीरो आई, आई जीरो जीरो आई का ट्रांसपोज एंड आई जी आई आई, ऐसे ही था ना? ये थे, ठीक है। एंड दिस विल बी जी जीरो जीरो के आपके पास वन वन, जीरो 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 का ट्रांसपोज है जीरो जीरो, माइनस वन और ये जो है एक मिनट आई आई, ठीक है। जी जीरो आई, जो जी आई जीरो है, यहाँ पे हमने जीरो आई का ट्रांसपोज लिखा है, ट्रांसपोज लिखना जरूरी है, सीधा सीधा क्यों नहीं लिख दिया हमने जी आई जीरो। अच्छा यहाँ ये स्टाफ, ये आगे आपको जरूरत पड़ेगी, पता चला। वैसे तो जीरो का ट्रांसपोज जीरो लेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें आगे ना, क्योंकि टू डायमेंशन है, हमें आगे जो है ना इसकी जरूरत पड़ जाएगी इस फॉर्म में। अच्छा ये आई आई मतलब जितने भी आई हैं उनके लिए माइनस आई, ठीक है। तो मीन कहने का मतलब ये है कि आई आई सेम होगा तो वन होगा, ठीक है। जे जे के लिए भी जितने डायगोनल एलिमेंट हैं इनको जब दोबारा हमें कन्वर्ट करना होगा तो हमें आसानी है, ठीक है। ये हमें आगे बहुत जगहों पे हेल्प, अभी आपको नहीं पता चला, हमें बहुत ज़्यादा जगह पे, जैसे उन्होंने पूछा कि दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, बट ये हमें आगे जहाँ सिर्फ इंडिसेस यूज हो रहे होंगे वहाँ हमें हेल्पफुल। तो वहाँ सर ये जी आई आई भी हम वन लिख सकते हैं। एक्चुअली आई की 3 वैल्यू आ रही है, आई से मराद 1 नहीं है। अगर इसको स्पेंड करोगे ये बनेगा 1 0, मतलब ये आपके पास 3 है, ये सिर्फ 0 नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। Why we have, ये क्या आपके पास कितने का है, ये कितने ऑर्डर का है, मैं ऑर्डर ये ऐसा में पीछे कुछ और भी चलता है इस वजह से। ये कितने ऑर्डर का है, कितनी रो कितने का, ये 0 रो 0 का, ठीक है। मैं ऑर्डर देता हूँ, नंबर ऑफ रो भी 0, कॉलम भी 0। ये कितने हैं, 0 रो आई कितने 3, ये 3 के लिए वैल्यू, ये 1 नहीं। और ये भी आपके पास नहीं, असल में यहाँ मुझे ऐसे निशान भी नीचे रखना चाहिए, ठीक है। ये 0 का, और ये कितना है 3 0 कॉलम, यानी पहला कॉलम और 3 उसके नीचे, और ये क्या है ट्रांसपोज, ये 3 क्रॉस 3, ये मैट्रिसेस है, असल में ये नंबर नहीं है, कहने का मतलब नहीं है।
ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक मिनट, अच्छा, दिस जीरो डजंट मीन दिस इज जीरो, एक्चुअली दिस इज नॉट जीरो, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। ये तो वन तो नंबर है, ठीक है, ये तो 0 0 ये तो नंबर हो गया, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं। ओनली दिस इज अ नंबर, रिमेनिंग ऑल आर मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के ट्रांसपोज ये नंबर नहीं है, ठीक है। ये हमारी आसानी के लिए हमने उसे शॉर्ट किया हुआ है, बट दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर दी मैट्रिसेस। One is so you may write that one is number, this is number, ये नंबर है, ठीक है, सिर्फ ये नंबर, this and this, all these are the matrices। एक मिनट, मैं बाद में एक मुझे जवाब दे दूंगा। and this will be 0 3, तो वो उसका उसी का ट्रांसफर 3 0 and 3 cross 3. Okay, if I write in this form, this will become 1 0 0 0 0. अब ये डायगोनल आई मीन तमाम उसके लिए -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 minus। यस अब बस यही बात मैंने कहा था, थोड़ा सा समझ लो, शायद आपके सवाल का जवाब, ठीक। सो दिस विल बी, ये अगर आप इसको उस फॉर्म में देखोगे, ये नंबर, ये आपका पास वो मैट्रिक्स हुआ, ये मैट्रिक्स आपके पास, ये और ये पूरा मैट्रिक्स है। ये कौन सा है? ये इसे कहते हैं आइडेंटिटी। ये क्या है? ये जो आई होता है ये आइडेंटिटी, माइनस आइडेंटिटी 3 क्लास। अब क्लियर हो गया बेटा? दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोवेरिएंट टू कंट्रोल। और सिमिलरली इफ वी ट्रांसफॉर्म if we transform covariant to contravariant, अगर हम फ्लैट स्पेस में, मैं फिर ये बात आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द फ्लैट स्पेस, जीरो ग्रेविटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशन। हम जाता है कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट में क्या आएगा और कोवेरिएंट x a will be equal to, चलो g नहीं आती, ठीक है, वो तो बता देना g of a ऐसे ही है। yes सबसे मजे का मेरा ख्याल है CM ही होगी। मैं कहा theoretical physics is my first class। ओके, मैं क्या था, x sum a g a alpha
एक्स ये था, ठीक है। एक्स 0 एक्स आई जी 0 0 एक्स 0 प्लस जी 0 आई एक्स आई, ऐसे ही यस सर। जी आई 0 एक्स 0 प्लस जी आई ओके। जी 0 is ct minus c minus x, okay। जी 0 0 सीटी ct plus g 0 I एक्स x g I 0, दिस मस्ट बी अ सेम, ठीक है। ये भी इक्वल है, हमें ये भी ये बताता है, हम ट्रांसपोज लें तो हमें यही बताता है कि दे मस्ट बी अ सेम। के साथ माइनस नहीं है, एक्स के साथ सर माइनस नहीं माइनस है। सी And now this right side concurrent and left side covariant। पहले आपकी राइट साइड कोवेरिएंट थी, कोवेरिएंट के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और कंट्रावेरिएंट इज द सेम, दैट्स व्हाई। सर अब ये साइड पे कोवेरिएंट है एक माइनस हाँ इस साइड का कोवेरिएंट है ना, ये देखो नीचे यस कोवेरिएंट मींस सबस्क्रिप्ट, कंट्रावेरिएंट में कोवेरिएंट मींस सारे सिग्नेचर प्लस प्लस प्लस, कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट मींस प्लस प्लस प्लस, कोवेरिएंट मींस प्लस माइनस माइनस माइनस। असल में आयोटा जिसके साथ आ जाता है उसका कंप्लेक्स कर देंगे। रो रो, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। जी 0 0 विल बी 1, जी 0 I 0 0 I विल बी 0 0, जी I 0 0 I 0 0 ट्रांसपोज। असल में ये 0 ये है, मैं गलत लिखता हूँ, असल में ये जी 0 0 ये मैट्रिक्स है, असल में इसके नीचे नहीं लाना है। और ये क्या है आपके पास, मैंने पहले बताया था 0 रो 3 0, और ये क्या है 3 और 0 क्रॉस 3 का 3 क्लास 3 क्रॉस, जैसे वैसे हम लिखते 0 3 है, 0 3 का ट्रांसपोज या 0 3 0, ठीक है। यस एंड जी डेल्टा आई इज डेल्टा आई, और ये डेल्टा आई सुपरस्क्रिप्ट में हो या सब्सक्रिप्ट अच्छा ये आई नहीं आएगा, आपने ये देखना ये फिर ये इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये माइनस है, माइनस, और इसका मतलब है माइनस डेल्टा मैट्रिक्स जो कि 3 का सर ये कोवेरिएंट है इसलिए माइनस नहीं, मैं बोल रहा हूं इसमें कोवेरिएंट का कोई चक्कर नहीं। मैंने आपको पहले बताया था, मैंने कहा था दिस विल नॉट ट्रांसफॉर्म अंडर दी एनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल रिमेन दी, वहां भी हम यही पूछते आगे भी मैं बताऊं वो क्यों है वो मैं पहले ये, ठीक है। ये करोगे माइनस एक्स प्लस एक्स के बराबर का होगा, जब ये माइनस है उसका कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट
इसका कंट्रावेलेंट भी ये हमने प्रूव किया, मैं दोबारा बता, इसका कंट्रावेलेंट, इसके तमाम इंडिसेस सेम है। आपके पास ये कोवेलेंट भी है, कंट्रावेलेंट, ये चीज इसमें जी पे इफेक्ट नहीं हो रहा, ना कंट्रावेलेंस है ना कोवेलेंस। जी अंडर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। मैं ग्रीन से कर, जी आई कंट्रावेलेंट हो या कोवेलेंट हो, दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्लास से। दिस इज नंबर, ये कोवेलेंट हो, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट चेंजिंग, these are it's and this is are telling a lie. They are the same. For contravariant, G A क्या आपने लिखा था? G A alpha is equal to G covariant A. there is no change. Whether you are taking the covariant, whether you are taking the contravariant, G में कुछ change. बाकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो सारी देखी हुई है, फ्लैट स्पेस में वही ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कंट्रोलेबल प्रोग्राम, so there will be no change in it. हमारे पास बहुत नहीं है सर, जी बहुत नहीं है सर आजकल, क्या नहीं है? काफी नहीं है सर। अच्छा वो मैं क्या कर वो मैंने समझा उस लड़के से पूछा है। अच्छा ये सब तो क्लियर हो गया। सर वो दूसरा देख क्या तो दूसरा विषय देख लिया, बट ये तो भी कंप्लीट हो गया। तो 1 मिनट है, 1 सेकंड। तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जी कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा अच्छा जी की वैल्यू जो है ना, जी जो है, अब आपके पास जो जी आया है, जी ए अल्फा हो या जी अल्फा हो, you must be remember that it is 1 0 मैट्रिक्स इसलिए यहाँ पे ये 0 ठीक है, 0 ट्रांसपोज एंड मतलब रो कॉलम में कॉलम डेल्टा कर लो, या अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ये माइनस ही माइनस और ठीक है, वो या जो है आपको मेरा 1 0 0 असल में असल तरीका ये है I 0 ठीक है, वो हो गया, या उसका ट्रांसपोज हो गया, या क्रोनिक कंटेंट I इसके साथ भी सर माइनस नहीं आएगा इसका सच इससे। अच्छा सो इसमें आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं। जी इज अगर आपके इंडिसेस, मैं थोड़ी सी कहीं गलती कर रहा हूँ, जी आई ओके
यहाँ ना थोड़ा सा एक चीज नहीं उसको पास नहीं इसको सोचने वाली जो बात है ना वो मैं थोड़ा सा ये आपका हुआ पहली दो पैरा पर आपके पास चलो ठीक है। एक्चुअली वैसे जो हम क्रोनिकल डेल्टा नॉर्मल लिखते हैं ना वो हम ऐसे लिखते हैं। एनीवे वो बात की बात है, वो बात में आपको समझाऊंगा, ठीक है, वो चीज़ है अभी आपके लिए नहीं करती, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताने वाली थी, शायद मैं भूल गया था, आपको बताने याद नहीं रहा। कोई भी फंक्शन है उस पर अल्फा और बीटा अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है आपके पास रो, ये है कॉलम। और अगर आपके पास एक बीटा लिखा हुआ है इसका मतलब ये हम रो लेंगे, इसका मतलब ये कॉलम, ठीक है। अच्छा यहां एक एक छोटे छोटे इंडिसेस का फर्क था। अगर मैंने इसी टी को अल्फा लिखा और ये भी लिखा, दैट इज टोटली डिफरेंट सिंपल। अगर सेमी कॉलम नहीं लगाया तो इसका मतलब कॉलम नहीं होगा, नहीं। ये जो अगर इसकी जगह अगर ये लगाया, इस पे बोर्ड नहीं, ठीक है, डॉट नहीं, इट मीन डिफरेंशियल ऑपरेटर, हम डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, रो एंड कॉलम, ठीक है, समझ आ रही है। बट हियर इट इज नॉट कॉलम। ये बड़ा केयरफुली आगे बड़ा सुना। तो इसका मतलब है कि पेपर में आप यहां से समझ लें कि इंडिसेस की कितनी इंपॉर्टेंट है, या सेमी कॉलम की एक नुक्ता भूल जाते हैं तो उसका मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज का भी आप मतलब लिखते हैं तो टोटली चीज डिफरेंट हो, इसलिए यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि टी आपके पास एक एलिमेंट है, सेम हो गया यार, दो वीडियोस अब फिर कंबाइन करनी पड़ेगी। इफ देयर इज अ कोमा देन इट मीन दैट इज डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव कौन सा होगा, कंटामिनेंट, यानी आपका ये जो डेरिवेटिव है दिस इज कंटामिनेंट बीटा, और जो फंक्शन है वो कोवेरिएंट, ये कोवेरिएंट फंक्शन है और कंटामिनेंट इसका डेरिवेटिव, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। और ये कंटामिनेंट कैसे लिखते हैं ये तो आपको मैंने बताया हुआ है, यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, पार्शियल एक्स ओवर ये कंटामिनेंट है तो ये क्या होगा, एक्स कोवेरिएंट, तो ये आपका, ठीक है। दिस ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास टी अल्फा कोमा बीटा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल बीटा और टी अल्फा, ओके, पार्शियल एक्स ओवर कंट्रावेरिएंट है तो ये क्या होगा, कोवेरिएंट, ठीक है। एंड टी अल्फा बीटा हो
partial or partial X contravariant. contravariant beta t की पावर ये सर तो नहीं है बीटा पर ये जो बाद वाला है ना मोमेंट है वो डेरिवेटिव ये सर C के साथ अल्फा नहीं है ऐसे होता है। और अगर T अल्फा ओमा बीटा ये सर आएगा Partial partial covariant covariant beta T alpha t alpha partial or partial X contravariant beta और Contravariant. contravariant beta T alpha ओके yes ये आगे हमें नोटेशन यूज करनी है एंड पार्शियल अल्फा इज partial or partial X covariant partial x over partial covariant covariant alpha and that will be partial over partial covariant नहीं है सर covariant alpha covariant इधर covariant सर वो टी के साथ अल्फा नहीं है ना नीचे alpha या इधर alpha ही है सर लास्ट में नीचे और ये last सर लास्ट स्टेप ये पीछे वाला ये कोवेलेंट में अच्छा वैसे ये ना x y z ct है ना ठीक है इन नेचुरल यूनिट c एंड h का की मैग्नीट्यूड 1 होती है ठीक है तो हम c नहीं लिखेंगे आगे से हम ये c यूज ही करेंगे c की बजाय t से यूज करेंगे ये पाना नेचुरल सी और जहाँ भी सी है सी फिर अपीयर नहीं होगा सी की मैग्नीट्यूड 1 है यूनिट में तो यूज हो रहा है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 1 है ठीक है वाई अब आप पूछोगे ऐसा कैसे हो सकता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 रेज़ टू पावर 10 8 है ठीक है so then why how I can may I define that magnitude is 1 you know that the speed of light is a physical quantity and whenever we change the physical quantity के जो magnitude होती है वो कांस्टेंट नहीं होती जैसे यूनिट चेंज करते हैं उसी सेम क्वांटिटी की magnitude का मिसाल के तौर पे 1 लीटर जो है दूध वो 1 लीटर का आएगा बट मिलीलीटर में वो 1000 होगा मिलीलीटर ठीक है और किलो में वो जो होगा 0 पॉइंट मतलब 0 मतलब चेंज हो जाती है मैग्नीट्यूड व्हेनेवर यू चेंज द यूनिट द मैग्नीट्यूड विल बी फिजिकल क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड विल बी चेंज दैट्स व्हाई सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज अ यूनिट so when we change the unit its magnitude will be changed or when we change this magnitude in such a way that will be when we change the unit in such a way that this magnitude become a 1 then that unit is defined as a natural unit for reference because it is not defined by me so I must write the reference for reference QFT quantum field theory चलो नाम सुना quantum field theory by Mendel and Shaw ये अमेरिकन बुक है चैप्टर 6 ठीक है चैप्टर 6 ऑन नेचुरल इफ यू अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू see it in detail that that will be available okay so here I am using the natural unit ठीक है maximum तो क्या आ जाएगा आपके पास नॉट के लिए t माइनस नहीं सॉरी t partial by partial t and partial covariant will be treated as conformant no sign will be changed I have already told हाँ इसमें उल्टा होता है इसमें साइन चेंज होता है इसमें कंट्रावेरिएंट के लिए साइन है चेंज हो रहा है उसमें ये डिफरेंस समझने की जरूरत है एक दफा फिर समझते हैं ये मैं नेचुरल यूनिट में कारण ठीक है इसलिए सी मैंने कहा इसमें कंट्रावेरिएंट के साथ माइनस आ रहा है ठीक है और
कोवेरिएंट के साथ प्लस प्लस, बिल्कुल ऑपोजिट। मैं दोनों इकट्ठे लिखना चाहते इसलिए, जबकि इसके बरक्स एक्स अल्फा जो है वो आपके पास, अच्छा एक मिनट, मैं ऐसे सही फॉर्म कॉलम फॉर्म में लिखते हैं ना, हमें कॉलम में लिखना है। ये क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी और माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल माइनस पार्शियल पावर ओवर पार्शियल एक्स, और ये क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल टी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ओके, एंड यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अल्फा, सॉरी नहीं इसका, ये क्या होगा, पार्शियल टी प्लस एक्स, इसमें कंट्रावेरिएंट दोनों प्लस हैं, और कोवेरिएंट में माइनस यहाँ ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ ये प्लस है, यहाँ दूसरा माइनस, सो दैट्स आपको ठीक है। असल में एक्स की वैल्यू सर अच्छा, अब बात हो रही है पेपर इसे पास कर पेपर पैटर्न की।